हिंदू धर्म को अमेरिकी धर्म संसद तक ले जाने वाले स्वामी विवेकानंद ने साल 1900 में कैलिफोर्निया में दिए एक लेक्चर में भी कुछ ऐसा ही जिक्र किया। विवेकानंद के मुताबिक पुराने रीति रिवाजों के मुताबिक जो बीफ नहीं खाता था वो अच्छा हिंदू नहीं था। If you came across this video seeing the title Hindus discovered eating beef and you expected to find a video of the same, how Hindus have been caught somewhere eating beef, then I must disappoint you. This video is about history. It is about the views of Swami Vivekananda regarding ancient Indians and how they relished eating beef and even went to the extent of sacrificing animals for certain religious ceremonials. What you're seeing on the screen is the cover of an 8-volume set published by the Advait Ashram titled The Complete Works of Swami Vivekananda. In the 3rd volume of these collected works, Swami Vivekananda expresses certain views about beef eating. On page 174, he says, "There was a time in this very India when without eating beef no Brahmin could remain a Brahmin. You read in the Vedas how when a sannyasin, a king, or a great man came into a house, the best bullock was killed. How in time it was found that as we were an agricultural race, killing the best bulls meant annihilation of the race. Therefore the practice was stopped and a voice was raised against the killing of cows." What he's essentially saying is, and acknowledging the fact that in ancient India, Hindus used to eat beef, and without eating beef, no Brahmin could remain a Brahmin. That is, it was obligatory, compulsory for a Brahmin to eat beef. And he also says that the Vedas certainly mention that whenever a king, a sannyasi, or a great man came into a house, the best bull was sacrificed and killed, and its meat was served to the guest. The reasons why people stopped doing this were mostly economic and not religious. On page 536 of the same book, that is the 3rd volume of the complete works of Swami Vivekananda, he writes, "You will be astonished if I tell you that, according to the old ceremonials, he is not a good Hindu who does not eat beef. On certain occasions he must sacrifice a bull and eat it. That is disgusting now. However, they may differ from each other in India in that they are all one. They never eat beef." Here, what he is trying to say is that according to the old Hindu ceremonials, the ancestors of Hindus were not considered good Hindus if they did not eat beef. Acknowledging the fact that yes, beef eating was sanctioned in ancient Hinduism, and it's only in modern Hinduism, and that too from an economic point of view, that this was stopped. The religious grounds for banning beef were given much later in the Hindu tradition, and they were not originally prohibited from eating beef. What it goes on to show is that ancient Indians, ancient Hindus used to eat beef and very proudly eat beef, and without eating beef they were not considered good Hindus. Hare Krishna. People like controversies. लोगों को अक्सर चटपटे विषय बहुत पसंद आते हैं, और अगर चटपटे विषय नहीं मिलते तो कुछ वो खुद ही अपने आप बना लेते हैं। हाल ही में एक भक्त ने खास तौर पर मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या भगवान रामचंद्र ने मीट खाया था। वैदिक शास्त्रों से हम ये मालूम कर सकते हैं कि क्षत्रियों को
कुछ ऐसे खास मौकों पर मांस खाने की इजाजत थी। तो क्षत्रियों को ऐसी काफी सारी चीजों की इजाजत थी, क्योंकि उनका जो पेशा है, उनका जो धर्म है, उसके लिए इस तरीके के मौके और इस तरीके के वातावरण की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर मांस खाना, क्षत्रिय के लिए मांस जो है खाने से ज्यादा वो, क्योंकि उनको शिकार करने की जरूरत पड़ती थी ताकि वो अपना जुझारूपन यानी कि फाइटिंग स्पिरिट बरकरार रख सके। जिस तरीके से क्षत्रियों को रिस्क लेने की, जोखिम उठाने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि क्षत्रियों के लिए जो है जोखिम उठाने की स्पिरिट को विकसित करने के लिए और बरकरार रखने के लिए जुए की भी इजाजत है। भगवान सारे जगत के मालिक है, सारे जगत का सृष्टि करता है, वो चाहे तो कुछ भी खा सकते हैं। చాలా ముఖ్యం యోగం అంటే ఏం తినాలండి, ఎన్నింటికి లేవాలండి, ఇది పెద్ద ముఖ్యం కాదు, దానికి పెద్ద ప్రాధాన్యం ఇచ్చేస్తా. యోగాభ్యాసం చేసేవాడు అందరూ శాకాహారమే తిన్నారట. రాముడు మాంసాహారి, శ్రీకృష్ణుడు మాంసాహారి. ఆయన చెబుతున్నాడు ఈ పద్యాలు, నన్ను మన్నించండి, మనకి సెంటిమెంట్లు దెబ్బతినక్కల. శ్రీకృష్ణుడు దేవుడు మాంసాహారి, రాముడు దేవుడు మాంసాహారి, ఎందుకంటే వారు క్షత్రియులు. కొంతమంది హిందూ ధర్మం అంటే శాకాహారం మాత్రమే అనుకుంటూ ఉంటారు. అది కాదు అనలేం కానీ అవునని అంగీకరించడం. హిందూ ధర్మంలో మాంస భోజనం కూడా ఉంది. మాంస భోజనం చేసినంత మాత్రాన వాడు హిందూ ధర్మం నుంచి దూరం అయిపోడు, ఇది కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఇక్కడ. కనుక మాంస భోజనం చేసే వాళ్ళని అవమానించడానికి లేదు. आए अब हम इस विषय का तीसरा यानी आखिरी प्रश्न जो सबसे ज़्यादा अहम है इसको हल करते हैं। क्या बात है, सिर्फ गाय की बलि पर ही भारतवासियों में गुस्सा छा जाता है? हिंसा पाप है, इंसान शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं, इस तरह के विषयों की चर्चाओं की धूम होती है। हालांकि गाय के अलावा कई किस्म के पशु प्राणी को खाने वाले लोग भी हिंदुस्तान में मौजूद है। इस पर किसी भी धर्मगुरु को गुस्सा आता हुआ नहीं देखने को मिलता। इसका जवाब इस तरह है कि मानव समाज में हम देखते हैं किसी भी मानव के अंदर कोई भी पशु का गुण अधिक नजर आए तो तुरंत ही हम उस व्यक्ति को उस पशु के नाम से पुकारते हैं। जैसे वीरता से लड़ने पर शेर कहते हैं, मूर्खता पर गधा, सुरीली आवाज़ पर कोयल, भोज ढोने पर बैल। इसी तरह हर वक्त नरमी और प्रेम से मिलने जुलने वाले इंसान को गाय कह देते हैं। यही कारण बना कि इतने सारे धर्म ग्रंथों के आधार और प्रकृति के सिद्धांत देकर समझाने के बावजूद भारत के लोग गाय की भक्ति और प्रेम में डूबे हुए नजर आते हैं। हम लोगों को गाय के आध्यात्मिक तथ्यों को जानना जरूरी है। भारत के लोग आध्यात्मिक और तत्वज्ञान के प्रेमी होने के कारण बहुत सी बातों को आध्यात्मिक रूप से बयान करते हैं, इसलिए गाय को भी बहुत सी जगहों पर आध्यात्मिक रूप से पेश किया है। वेद उपनिषद जैसे धर्म ग्रंथों को भी गाय कहा गया है और ऋषि मुनियों, अवतारों और साधु सत्पुरुषों को भी गाय कहा गया है। जैसा कि गीता शुरू होने से पहले एक श्लोक आता है जिसमें कृष्ण जी कहते हैं, सर्व उपनिषद गाओ दुग्ध गोपाल नंदनहा। इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सारे उपनिषद गाय हैं और मैं दूध निकालने वाला गोपाल हूँ। इसका मतलब यहाँ साफ है, गाय जानवर नहीं बल्कि उपनिषद को गाय कहा गया है। इसी तरह महाभारत में कृष्ण जी के 16,000 बीवियों को गोपियों के रूप में बतलाया गया है। वो गाय या बीवियां नहीं थीं बल्कि वो सब कृष्ण जी के भक्त थे। अथर्ववेद के 20वें खांड में मामे ऋषि को 10,000 गाय देने का जिक्र है जो हकीकत में इनके भक्त हैं। और इसी तरह इस्लाम के तत्वज्ञान में भी ये आस्था पाई जाती है। कुरान करीम के सूरह यूसुफ में आया है, एक बादशाह ख्वाब में देखा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही है। इसकी ताबीर यानी मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह बताया कि वो 7 गायें धरती है, 7 साल तक अनाज खूब पिकेगा, ये मोटी गाय के बराबर है, और 7 साल दुष्टकाल होगा यानी क़हत होगा, ये दुबली गाय के बराबर है। यहाँ धरती को गाय के रूप में बतलाया गया है। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद से पहले एक ख्वाब देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में गाय ज़ुबा होते हुए देखा। इससे मुराद जंग ओहद में शहीद होने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायी थे। ये बात सही बुखारी हदीस नंबर 4081 में हमको मिलती है। यहाँ गाय को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनुयायी से तुलना दी गई है। इन वाक़यात को देखने के बाद पता चलता है कि जिस गाय को भगवान या देवता के रूप में बताया जाता है
वो ये गाय नहीं है जिसके लिए आज लोग आपस में लड़ रहे हैं। वो आध्यात्मिक गाय है, यानी वो वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, कुरान है, या ऋषि मुनि, अवतार, पैगंबर और साधु सत्पुरुष हैं जिनका एहतराम करना, सम्मान करना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। आखिरी में मैं परमात्मा अल्लाह से ये प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह, है परमात्मा, हम तमाम लोगों के दिलों में जो एक दूसरे के प्रति द्वेष है उसको दूर कर और धार्मिक ग्रंथों पर आचरण करने की हमें तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।